پر ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیے اور تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے۔ بیٹھا نا ٹھیک سے بیٹھے محترم حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ سبھی حضرات بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات خدا اور اس کے محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ سبھی کا بیٹھنا اور سننا قبول عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو سامنے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اور اس کے محفل میں ان کا حکم بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مشک پانی دریا بہا دیے ہیں۔ حاضرو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاضرو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ محترم حضرات، آئیے ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وبارک وسلم۔ بی بی فاطمہ کی واقعہ۔ صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں، لیکن کبھی یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جاتے ہیں اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا حال ہے، یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو، یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے، فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا۔ آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ، تجھے خدا کا واسطہ، مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہو اور یہ کیا حال ہے کہ کہیں پانی گرم ہو رہا ہے، کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تیاری ہو رہی ہے، آخر کیا حال ہے؟ بس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتی ہے اور اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خواب میں میں نے میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے نبی، تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو، تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی نے کہا کہ بیٹی فاطمہ، میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب بتاتی ہے اور اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایت کے اندر ہے کہ
करते और अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, तेरी वफात हो जाएगी, तो हम इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है कि ऐ मेरे शौहर अली, जिस तरह तुमने मेरे अब्बा के वफात पर सब्र किया था उसी तरह मेरे वफात पर भी सब्र कर लेना। रवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत तेज से बुखार चढ़ने लगती है और कहती है कि अली, अभी तो मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है, मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊँ, कपड़े धुल कर जाऊँ, अपने बेटे हसन और हुसैन को नहला कर जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। रवायत के अंदर है कि हजरत अली रो रहे हैं, हजरत फातिमा रो रही है, इतने में ही वह प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर आ जाते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बेटे हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है और अपने दोनों बेटों को अपने सीनों से लगा लेती है। हजरत अली रो रहे हैं, हजरत फातिमा रो रही है, इनका रोना देखकर वह प्यारे बच्चे हसन और हुसैन को भी रोना आ जाता। जब वह मासूम बच्चे रोते और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तुम क्यों रोती हो, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान तुम क्यों रोते हो, हजरत अली कोई जवाब नहीं देते, हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम मेरे वालिद के कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र के ऊपर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं, नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज आती है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ऐ मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, तुम तो मेरे पास कभी भी आ सकते हो, लेकिन ये आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर अली से कहती है कि अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए तो किसी को ना बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती है कि किसी को ना बुलाना, मैं तो पूरे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं तो पूरे मदीने वालों को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होगे और मेरे ये 2 मासूम बच्चे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगती है और कहती है कि मुझसे मेरे अब्बा ने कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरे वालिद की बात को पूरा कर लिया, जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन की तरफ निगाह ना उठाए। मेरे माँ बहने, आज हमें इसी बात से शर्म आती है कि हमारे जवानों को कहा जाए कि तेरा चेहरा ऐसा बना दे जैसा चेहरा तेरे नबी का था, तो वो हमें पसंद आती है। हमारे जवानों से पूछो कि तेरा अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ले, और हमारी माँ बहनों से कहा जाए कि चेहरे की पर्दा कर लो, तो ये बात हमें पसंद नहीं आती। रवायत के अंदर है कि अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो ये नबी की बेटी की आखिरी वसीयत है कि जिंदगी में किसी मर्द ने
जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ टांग न उठाए। आखिरी जुमला अली से कहती है। मेरे भाइयों सुनो, आखिरी जुमला अपने शौहर अली से कहती है कि अली आज मैंने रोजा रखा है। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि सहरी अली की दस्तरखान पर करना, इंशाअल्लाह इफ्तार मेरी दस्तरखान पर होगा। बस ये जुमला कहकर फातिमा हमेशा के लिए उठ जाती है। रवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है। अब वो अजीब गरीब मंजर था जब फातिमा का जनाजा उठा, उसके 6 महीने पहले ही नबी का जनाजा उठा था। आज उसकी लाडली बेटी का जनाजा उठा। रवायत के अंदर है कि जब उनका घर जनाजा उठता है, जर्दे के एक पाए को अली अपने कंधे पर रखा है, दूसरे पाए बड़े बेटे हसन के कंधे पर रखा है, तीसरे पाए को छोटे बेटे हुसैन के कंधे पर रखा है, चौथा पाया देने वाला मौजूद नहीं। अली इश्क करते हैं कि अचानक एक सहाबी सामने से नजर आता है जिसका नाम हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वह वहाँ पहुँच जाती है। अली कहते हैं कि तुझे खुदा ने भेजा है, आज उनके रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, तुम उनको कंधा दे दो। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंधा देते हैं। ये जनाजा उठकर चलता है। रिवायत के अंदर है कि हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस जनाजे को रखते हैं और कब्र से कहते हैं, या कब्र अतजरी मनीयते जितना बिहा इलेका हादिही बिंतु रसूलुल्लाह हादिही ज़मज़तु आलिकिन हादिही उम्मुल हसनैन। या कब्र, ऐ कब्र तुझे मालूम है ये किसका जनाजा है? ये उसका जनाजा है जिसको अल्लाह के रसूल की बेटी कहा जाता। ये उसका जनाजा है जिसको अली की बीवी कहा जाता। ये उसका जनाजा है जिसको हसन और हुसैन की माँ कहा जाता। रवायत के अंदर है कि कब्र के अंदर से आवाज आती है, जा कब्र हाजल सदातुन नस्बिन वला हस्बुन कि अबू जर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला यहाँ खानदान और इसके मत गिनाओ, यहाँ खानदान और इसके मत गिनाओ। यहाँ तो ये बताओ कि अल्लाह के रसूल के मान कर आए हो या नाफरमानी करके आए हो। ये अंदर से निकला था, वो फातिमा के लिए नहीं निकला था। फातिमा तो अल्लाह की बख्शाई बंदी है। हमारे नबी ने बसारत की है कि वह जन्नती है। जो जुमला कब्र के अंदर से निकला था वो हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए निकला था कि जब तुम्हारा जनाजा किसी को